बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. May all the Buddhas and Bodhisattvas, Devas and Nagas, saints and sages, and all the divine beings and divine powers from all the directions of the universe may kindly look at us and shower their blessings upon all of us for the success of our coming together in this beautiful hall and this beautiful city, Jammu. Our very dear and respected Shri Pardeep Joshi ji, Akhil Bharatiya Se Sampark Pramukh. Our very dear and respected Major General S.K. Sharma ji, and our respected Rupesh ji, and all the distinguished guests and participants. Also, I should not forget to mention the name of Parmit ji. Where is Parmit ji? Working behind the screen. It is my great honor and privilege to be part of this very important seminar, the contribution of India for world peace, organized by our Ladakh Phande Association. I'd like to express my deep appreciation, sincere thanks for the Ladakh Phande Sokspa outside Ladakh, different than Ladakh. I think the maximum number of Ladakhi students and Ladakhi people outside Ladakh is Jammu में रहते हैं, और that's why Jammu is something very special. सबके लिए स्पेशल. यहाँ सब लोग, सब मज़हब के लोग रहते हैं साथ से, और यहाँ पे हिंदुओं के बहुत होली पिलग्रिमेज विष्णु देवी जी, और हमारे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में एक बात आती है. I've been trying to visit Jammu for last several years, but due to one reason, this कोविड पेंडेमिक के कारण से नहीं आ पाया. उसके बाद फिर इधर उधर बहुत सी चीज़ में बिजी रहा, नहीं आ सका. आज कई साल के बाद यहाँ आने का मौका मिला. I really truly feel happy, and I must thanks once again for our Rajendra Singh ji. This hall is after him, and we have here Major General sir with us, and I am standing here as soldier. I also had the privilege, honor to serve in Indian Army, 70s. I had privilege to serve our nation on the Indo-China border, which the present government started. 4 years service was started by me, sir. I served only 4 years. I served only 4 years, and since then I have been training everywhere, everybody, that every citizen of our country should serve in Indian Army at least for some years. I didn't mention the exact word for, but I'm so happy that wish has been fulfilled by the present government. And now
more and more numbers of young people will have a chance to serve in Indian Army. I have been telling people that all Indian citizens should serve in Indian Army because a lot of good things to learn in Army. The best part of Army, the best thing I have learned is discipline. सिविलियन में इतना डिसिप्लिन नहीं होता है आर्मी में, इसलिए सब सिविलियन आर्मी में कुछ साल तो सेवा करना है। और इन इंडियन आर्मी वी डेवलप ए सेंस, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म, देश के देशभक्ति, देश के और जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी ट्रेनिंग मिल जाते हैं। एंड आई फील पर्सनली हम देखते हैं दुनिया में जो अन्य धर्म के विचार हुए हैं, उन्होंने एक प्रकार से प्रकृति के तरफ देखने का उनका दृष्टिकोण, हम कहते हैं ना उसको, रिडक्शनिस्ट अप्रोच किया है। टूटे टूटे भाग में उन्होंने अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। मानव को भी उन्होंने समग्रता का विचार नहीं किया है। उसका परिणाम रहा है वहां पर जो संघर्ष आ रहे हैं, वहां पर जो परिस्थिति दिखाई देती है, वहां पर प्रकृति का कोप दिखाई देता है, प्रकृति का शोषण दिखाई देता है, उसके कारण उनके अनेक समस्या आज भी दिखाई देती, पहले भी थी आज भी थी। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कभी हम लोग जेनोसाइड अपने गूगल में डालकर देखिए, और जेनोसाइड की जब सूची निकालने लगते हैं तो हमको दिखाई देता है दुनिया में मानवता के सामने जो एक प्रकार से हिंसा चली है, जो एक प्रकार से क्रूसेड्स चले हैं, दुनिया में अनेक प्रकार के विचार चले हैं, उन्होंने कितना बड़ा दुनिया का नुकसान किया है। भारत के बारे में कभी नहीं आता ऐसा। भारत में जरूर दूसरे देशों में जाकर अपना विचार देगा, कभी राज्य करने का अनुभव आया तो वहां पर हमने उनकी अस्मिता को तोड़ने का प्रयत्न किया। मैंने कहा ना, हम सबको सम्मान करते हैं, हम इंक्लूसिव है, हम जोड़ने वाले हैं, हम आपस में मिलकर विचार को बढ़ाने वाले हैं। ये भूमिका होने के कारण उस प्रकार के विचार को हमारे यहाँ पर पनपते हुए हमने देखा, जो विश्व शांति का एक मूलभूत आधार बना है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप कभी पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आता है 2001 में जब मिलेनियम 2000 में 2000 बदलकर 3000 की दिशा में हम निकले, तीसरी शताब्दी में जाने निकले, तब यूनो के सेक्रेटरी थे कोफी अन्नान। उन्होंने एक मिलेनियम पीस समिट लिया, देश के विविध प्रकार के समाज के उद्धार में स्पिरिचुअल रिलीजियस काम करने वाले लोगों को उन्होंने एक साथ बुलाया, और अगली सहस्त्राब्दी में मानवता के लिए और शांति का मार्ग कैसे दे सकते, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को सुनने का उन्होंने प्रयत्न किया। सबका सुन लिया तो अंत भाषण में वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यहाँ 3 दिवसीय इस मिलेनियम समिट में सबके सुनने के बाद मुझे ध्यान में आ गया कि हिंदू धर्म के पास, मतलब भारत के सारे धर्म के पास, जैन, सिख, बौद्ध मिलकर, सब मिलकर हमारा प्लेटफॉर्म जो है, उसके पास व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए, शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन वो अपने आप में केवल रखता है, दूसरे को देता नहीं। मैं आग्रह करूंगा, कोफी अन्नान कह रहे हैं कि दुनिया के 500 करोड़ लोगों को बिना धर्मांतरण करते हुए आप उनको श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करिए, वही विश्व शांति की गारंटी रहेगी। अब कोफी अन्नान जैसा आदमी कह रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो भारत के वजह से अपेक्षा ये कह रहे हैं कि आप दुनिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए आगे आइए, मतांतरण की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म भी यही मानता है, मतांतरण करने कोई भी धर्म अपने आस्था, श्रद्धा, उसके पूजा पद्धति, आस्था, कस्टम, रिलीफ्स, जिसको बोल सकते हैं बिलीफ्स, पक्का है, बस इतनी आवश्यकता है। मुझे लगता है